Hello everyone, welcome to the revision tour for class 12 IP, and we are discussing the exercise of NCERT book that is available on the NCERT website. So already we have discussed all the exercise of the chapter 1 which was from MySQL, and in this video we are going to discuss about the exercise related with pandas series and data frame. So this is the part 1 of chapter 2 and all the questions related from the topic series will be covered in this video. In the upcoming video, we will discuss the exercise from the topic data frame. So let us start the video. So here the first question was, as per the book, you can follow the book, that the first question was what is a series and how is it different from a one dimension array, list and a dictionary. So we have to first define that what is series and how it is different from array, list and dictionary. So basically we know that a series is a one dimensional data structure. Okay, so if we will compare it with array, list and dictionary, then we can say that NumPy array requires homogeneous data, while a Panda series can have different data types. This is the difference between series and array. And if we will compare a series with a list, then unlike Python list, a series will always contain data of the same type. And if we will compare it with dictionary, then dictionaries are unordered set while series is ordered set. Okay, and the values can only be accessed by the keys in case of dictionary, while data in Panda series can be accessed by keys but can also be accessed with a numeric index because they are ordered. So you can define the series and then you can compare it with array, list and dictionary. Then coming to the next question, what is a data frame and how is it different from a two-dimensional array? So basically a data frame is a two-dimensional labeled data structure like a spreadsheet. It contains rows and columns and therefore has both a row and column index. Now it is different from two-dimensional array because a 2D array requires homogeneous data while a pandas data frame can have different data types. Okay. So in the previous question also we have seen the difference between series and one-dimensional array. The same difference applies for data frame and two-dimensional array also. Now the third question, how are data frames related to series? So a data frame can be thought of as a dictionary of series. If we will combine multiple series, then we will have a data frame. Okay, बहुत सारे series को मिला के हम data frame create कर सकते हैं. Because series is one dimensional and data frame are two dimensional, so multiple series can make a data frame. Now next question, what do you understand by the size of series? Okay, these are the different questions. First question is size of a series and size of a data frame. So basically when we are talking about size, it means it will give you total number of elements in series or in a data frame. Okay, so if a series is having 5 elements, then the size means 5. If a data frame is having 12 elements, then size of the data frame will be 12. So it is equivalent to total number of elements in series or a data frame. Now coming to the next question, create the following series and do the specified operations. We have to create a series whose name is English Alph, having 26 elements with the alphabets as values and default index values. तो यहाँ पे हमें क्या करना, हमें एक सीरीज बनाना है जिसका नाम ऑलरेडी दिया हुआ है. वैल्यूज होंगे उसके जो भी 26 अल्फ़ाबेट्स हमारे इंग्लिश के हैं और इंडेक्स होगा उनका रिस्पेक्टिव पोजीशन. सो वी कैन create our series like this one. I have used the method that creating series from dictionary. You can use any of the method as per your choice. So this 1 2 will be the index values and this a b c d will be the data values. So you can see here that our series has been created like this one and this was the required output. Okay, now coming to the next question, it was asked to create
a series whose name will be vowels having 5 elements with index A, E, I, O, U and all the 5 values will be set to 0. अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक सीरीज बनाना है जिसका नाम होगा vowels, लेकिन उसके जो इंडेक्स होंगे वो होंगे A, E, I, O, U, लेकिन वैल्यूज सबके सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए. तो जब वैल्यूज सेम रखना है तो हम यहाँ पे वैल्यूज 0 लिखेंगे. यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज डालने की ज़रूरत नहीं है, बट लिस्ट ऑफ इंडेक्स रहेगा और दिस 0 विल बी असाइंड फॉर ऑल दिस गिवन index. Okay, so in this way you can see the output what we are getting. It is as per the question. So all the 5 values set to 0. All the 5 values has been set to 0. Okay. So if you want to assign a single value to all the index, then you can write the code like this. Now next question is, you have to create a series whose name is friends from a dictionary having roll numbers of 5 of your friends as data and their first name as keys. Okay. So यहाँ पे हमें क्या करना था, डिक्शनरी मेथड यूज़ करना था. तो हम डिक्शनरी मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैंने ऊपर वाले इंग्लिश एल्फ में डिक्शनरी मेथड यूज़ करना था, आपको सेम तरीके से यहाँ पे भी सीरीज़ बनानी है. मैंने यहाँ पे वो मेथड यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पे लिस्ट से बना लिया. आप डिक्शनरी मेथड से बनाओगे. ओके, आउटपुट शुड बी लाइक दिस. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया है. रोल नंबर कैन बी ऑफ योर चॉइस एंड नेम कैन बी ऑफ योर चॉइस, बट यहाँ पे हमें चाहिए 5 ही रिकॉर्ड. ओके, तो जैसा कि मैंने अभी ऊपर के क्वेश्चन में दिखाया था, यूज द डिक्शनरी मेथड टू क्रिएट द सीरीज. ओके, नाउ नेक्स्ट we have to create another series whose name is empty series and this should be empty. और आपको ये भी चेक करना है कि क्या ये empty है या नहीं. तो फर्स्ट थिंग, टू क्रिएट empty series हम सीधे सीरीज फंक्शन को कॉल कर लेंगे, इसे प्रिंट करेंगे और ये चेक करने के लिए कि हमारा सीरीज empty है या नहीं, हमारे पास एक empty प्रॉपर्टी है, एक empty एट्रीब्यूट है जो हमें बताता है कि ये empty है या नहीं. अगर ये empty होगा तो हमें आंसर मिल जाएगा ट्रू, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो हमें आंसर मिल जाएगा फॉल्स. तो यहाँ पे हमने सीरीज को क्रिएट कर लिया, एम्प्टी सीरीज को क्रिएट कर लिया. यहाँ पे हमने कोई डेटा पास नहीं करवाया है. सो एन एम्प्टी सीरीज हैज बीन क्रिएटेड एंड यस वी कैन चेक दैट वेदर इट इज एम्प्टी और नॉट बाय दिस कोड. Okay, now next we have to create a series named month days from a numpy array having the number of days in the 12 months of label should be the month numbers from 1 to 12. Okay, now what we have to do, हमें एक सीरीज बनाना है numpy array को यूज करके जिसमें डेटा होंगे हमारे जो 12 मंथ्स में नंबर ऑफ डेज हर महीने में जो होते हैं और इंडेक्स होगा हमारा मंथ का नंबर. मतलब जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 2, इस तरीके से हमें यहाँ पे जैसे हमने लेवल्स यूज़ किए हैं और हर मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं ये हमें करना है. तो हम numpy एरे लेके करना है. तो पहले हमने numpy एरे में नंबर ऑफ डेज को स्टोर करा लिया है. ओके, एंड यूजिंग दिस वी आर क्रिएटिंग आवर सीरीज. Name is already given in the question, so we have taken the same name and we are using the data from this numpy array and we are providing the index value as month number. Okay, so these are the month number. 1 means January, 2 means February, like that, because in the question it was asked to use the month numbers from 1 to 12. So here is the desired output. Now next question is, set all the values of vowel to 10 and display the series. तो वॉवेल सीरीज हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा था. अब इसमें हमें बोला जा रहा है कि जो हमने पहले 0 असाइन किया था, अब सारे वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, 10 असाइन कर देना है. तो चूंकि सारे वैल्यूज़ को 10 असाइन कर देना है तो इसलिए 0 की जगह अब हमने क्या यहाँ पे लिख लिया, 10 लिख लिया. तो अब आप देख सकते हो सारे के सारे वैल्यूज़ हमारे 10 असाइन हो चुके हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड ऑल द वैल्यूज़ ऑफ वॉवेल्स बाई 2 एंड डिस्प्ले द सीरीज. अब हम क्या करेंगे, वॉवेल्स जो हमारा सीरीज है उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है. ओके, तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा इट विल बी लाइक दिस वन. ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी रन दिस वन and
and we will run this one also. ओके, सो चूंकि हमने वैल्यू को 10 से रिप्लेस कर दिया था, इसलिए 2 से डिवाइड करने के बाद हमें वैल्यू 5 मिलना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज create another series vowels 1 having 5 elements with index labels A, E, I, O, U and having values as 2, 5, 6, 3, 8. इस बार हमें क्या करना, हमें एक नया सीरीज क्रिएट करना है जिसका नाम होगा वॉवेल्स, बट इस बार इंडेक्स लेवल ए ई आई ओ यू के लिए हमारे वैल्यूज होने चाहिए 2, 5, 6, 3, 8. तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि आपको डिक्शनरी यूज़ करना है या नंपाई एरे यूज़ करना है, तो आप कोई भी मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे हमने अपना डेटा प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे हमने अपना इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया और हमारा सीरीज यहाँ पे वॉवेल 1 नाम का क्रिएट हो चुका है. यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द रिक्वायर्ड आउटपुट ऑफ द गिवन क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको यहाँ पे वॉवेल्स 1 और वॉवेल को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है. ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए थे, तो जिस तरह से हम ऐड करेंगे वैसे ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वैसे ही आप डिवाइड भी कर सकते हो. ठीक है, ये क्वेश्चन था सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वॉवेल्स बाय वॉवेल्स 1. ओके, तो आप ये फंक्शन यूज़ करके भी कर सकते हैं या फिर आप ऑपरेटर यूज़ करके भी कर सकते हैं. तो चूंकि वॉवेल्स को वॉवेल के थ्रू, वॉवेल 1 के थ्रू करना था, तो आप सब फंक्शन यूज़ कर सकते हो सब्ट्रैक्शन के लिए, MUL मल्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हो मल्टीप्लाई के लिए और डिव फंक्शन यूज़ कर सकते हो डिवीजन के लिए. ओके, और आप यहाँ पे ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हो, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर. You will have the same output. Now the next question. Alter the labels of vowels 1 to capital A, capital E, capital I, capital O, capital U. अभी जो हमने वॉवेल्स नाम का, वॉवेल 1 नाम का जो सीरीज क्रिएट किया था, उसमें जो हमारे इंडेक्स थे वो स्मॉल लेटर्स में थे. अभी हमें क्या करना है, उनके लेबल्स को चेंज करना है कैपिटल लेटर में. तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे री इंडेक्स फंक्शन. ओके, तो री इंडेक्स हमने फंक्शन यूज़ कर लिया. अब यहाँ पे आप देख सकते हो एन वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए हमने अपने सीरीज में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया था. हमने इसमें स्मॉल ए ई आई ओ यू के लिए वैल्यू असाइन किया था, कैपिटल ए ई आई ओ यू के लिए हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं था. दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग एन वैल्यू विच मीन्स नॉट अ नंबर. नेक्स्ट, हमें ये बताना है कि ये जो सीरीज हमने क्रिएट किए थे ऊपर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वॉवेल्स, फ्रेंड्स, एम्प्टी सीरीज, मंथ, डेज, ये जितने भी हमने सीरीज ऊपर क्रिएट किए थे, उनका आपको डायमेंशन बताना है, साइज बताना है, वैल्यूज़ बताना है. मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ के लिए बता दिया और वो सारे सीरीज़ के लिए सेम ही रहेंगे. जब हम बात करते हैं साइज़ की, इसका मतलब है कितने एलिमेंट्स हैं टोटल. तो वॉवेल्स में हमारे कितने एलिमेंट्स थे, वॉवेल्स में हमारे 5 ही एलिमेंट्स थे. आपको याद होगा ए ई आई ओ यू 5 ही लेवल थे, तो 5 ही एलिमेंट्स थे. तो साइज का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स. डायमेंशन के लिए जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, वो होता है एन डिम. अब डायमेंशन मतलब अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज होता है 1 डायमेंशनल, तो इसीलिए ये आउटपुट देगा 1. जब हम डेटा फ्रेम पढ़ेंगे तो आपको पता है डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल है, तो डेटा फ्रेम के लिए ये एन डिम आपको देगा 2. और तीसरी चीज़ है वैल्यूज़. तो कौन कौन से वैल्यूज़ उसमें, उस सीरीज़ में स्टोर हैं, अगर आप उसे एक्सेस करना चाहोगे तो आपको यूज़ करना है वैल्यूज़. तो वॉवेल्स में हमारे पास वैल्यूज़ थे 10 10 10 10 10, तो उसने वही वैल्यूज़ दिखाया है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीनेम द सीरीज एम्प्टी सीरीज एज सीरीज एम्प्टी. हमने एक एम्प्टी सीरीज बनाया था जिसका जो बिल्कुल एम्प्टी था, उसमें कोई भी डेटा नहीं था. अब हमें कहा जा रहा है कि उसको एक नया नाम दो जिसका नाम होगा सीरीज एम्प्टी. तो अगेन हम सीरीज को अगर रीनेम करना चाहें तो हमारे पास रीनेम फंक्शन है. आप देख सकते हो हमने एम्प्टी सीरीज को एक नया नाम दे दिया सीरीज एम्प्टी, जिसको हम प्रिंट करेंगे तो वो भी एक एम्प्टी सीरीज ही दिखा रहा है. तो इस तरीके से हम सीरीज की रीनेमिंग भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, नेम द इंडेक्स ऑफ द सीरीज मंथ डेज एज मंथ नंबर एंड दैट ऑफ सीरीज फ्रेंड्स एज एफ नेम. डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब हम थोड़ा समझते हैं, इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं. आप अगर यहाँ पे देखोगे फ्रेंड्स या फिर मंथ डेज वाले सीरीज़ को अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ.
यहाँ पे आप देखो, ये मंथ डेज नाम का जो सीरीज हमने बनाया था, ये हमारे इंडेक्स है और ये हमारे डेटा है। इंडेक्स के ऊपर कोई भी हेडिंग नहीं है, आप देख सकते हो। इंडेक्स के ऊपर कोई भी लेबल नहीं है, बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इंडेक्स को एक लेबल दो और जिस लेबल का नाम हो यहाँ पे मंथ नंबर, ठीक है। और जो सीरीज हमने फ्रेंड्स बनाई थी उसके इंडेक्स का नाम हो एफ नेम, ठीक है। ये क्वेश्चन यही है। आप प्रीवियस आउटपुट में देखोगे यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं थी। तो अगर हमें इंडेक्स को कोई नाम देना हो तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम है रीनेम अंडरस्कोर एक्सेस। तो ये आपके एक्सेस को, इंडेक्स को एक नया नाम दे देता है मंथ नंबर, ठीक है। वैसे ही फ्रेंड्स सीरीज के इंडेक्स को हमने नया लेबल दिया एफ नेम। तो आप देख सकते हो पहले ऐसी कोई भी हेडिंग नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे एफ नेम बोल के एक हेडिंग आ चुका है। ओके, now coming to the next question. Display the third and second value of the series friends in that order. ये बोल रहा है कि आपको फ्रेंड सीरीज के थर्ड और सेकंड वैल्यू को दिखाना है। थर्ड मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड और सेकंड, पहले सिया एंड देन प्रिया नाम आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे LOC फंक्शन यूज़ किया है और LOC फंक्शन में आपको बोला गया है कि पहले थर्ड को दिखाना है फिर सेकंड को दिखाना है। तो इसीलिए पहले मैंने इंडेक्स यहाँ पे इसका 10 लिया है और फिर मैंने लिया है 5, क्योंकि इसी ऑर्डर में इसे हमें डिस्प्ले करना है। तो आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पे सिया आया और फिर यहाँ पे प्रिया नाम आया। पहले हमारे पास थर्ड रिकॉर्ड आया और फिर हमारे पास सेकंड रिकॉर्ड आया। सिमिलरली हमसे कहा गया कि डिस्प्ले द अल्फ़ाबेट्स E to P फ्रॉम द सीरीज इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग हमने बहुत तरीके से पढ़ी है। LOC भी यूज़ कर सकते हो, ILOC भी यूज़ कर सकते हो। तो ध्यान आपको रखना है कि जब आप LOC यूज़ कर रहे हो तो आप E का इंडेक्स देख लो, E का इंडेक्स वैल्यू था 5 और P का आप इंडेक्स देख लो, P का जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू था वहाँ तक आपने, P का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू था 16, तो हमने वहाँ तक लिया। आप देखो हमें E से लेकर P तक अल्फ़ाबेट्स इसने डिस्प्ले करा दिया है, ठीक है। तो जो भी कन्वीनियंट है, जिससे आसानी होती है आपको एलिमेंट्स को एक्सेस करने में, आप LOC और ILOC दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी। डिस्प्ले द फर्स्ट 10 वैल्यूज इन द सीरीज इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो फर्स्ट 10 वैल्यूज जब चाहिए तो उसके लिए हमारे पास हेड फंक्शन है और ब्रैकेट में आप जितना वैल्यू पास कराओगे वो ऊपर से 10 रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था लास्ट 10 वैल्यूज। इसके लिए हमारे पास टेल फंक्शन है, तो वो लास्ट 10 वैल्यूज हमें वो डिस्प्ले करा देगा। नेक्स्ट वन है यू हैव टू डिस्प्ले द एम्प्टी सीरीज। नथिंग टू डू, वी विल सिंपली राइट नेम ऑफ द सीरीज। Then coming to the next one, again it is same. You have been asked to display the names of month from 3 through 7 from the series month days. आपको मंथ डे वाले सीरीज में 3 से लेके 7 तक के रिकॉर्ड्स को आपको दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 से लेके 7 तक को दिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्ले द सीरीज मंथ डेज इन रिवर्स ऑर्डर। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको मंथ डेज वाली सीरीज के ये रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। पहले हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्प्ले किया था, अब आपको इसके इंडेक्स को रिवर्स ऑर्डर में करना है। तो हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, और असेंडिंग को हम फॉल्स बना देंगे क्योंकि हमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट the series has been displayed in reverse order. Okay, so this was all about all the questions related from the series topic. In the next video we will discuss all the questions which are related from data frame. So dear students, I hope you are enjoying all the revision questions from the NCERT book. If you find this video useful, don't forget to like it, share it and subscribe it. Thank you for watching.